Good afternoon, dear students. Welcome back to my class again. So today's the topic of discussion is The Voyage, written by Bhupen Hazarika. So in my last class, we have discussed up to page number 18. So today specially we will discuss page number 19 and 20. So in this session, we will sum up this chapter. So let's start the class of today. But we will read back to the page number 18. We will discuss a little bit. Then we'll continue with the page number 19 and page number 20. Okay. So in page number 18, what we have found out, finally Bhupen Hazarika reached at Sri Lanka. Okay. So when he was in Sri Lanka, at that time, he got the opportunity to visit a Sri Lankan family. So after visiting a Sri Lankan family, what he has noticed, now the Sri Lankan families, Sri Lankans, such kind of traditions and culture has been shifted. So now he noticed the piano, okay, piano in their drawing room, and all the Sri Lankan children, especially that family's children, has singing with English song. So they are singing English song and they have the piano. So means that the way of their living style is converted to European. Okay, they doesn't remain as an pure Sri Lankan here. It means as Bhupen Hazarika noticed. So after noticing that kind of traditions, that kind of culture in a Sri Lankan family, now Bhupen Hazarika went back to his past experience when he was in the Shillong. So Shillong is one of the northeastern famous place. Okay. So in Sri Lanka when he was connected with the Ceylon radio. So when he was working in the Ceylon radio, so during that tenure time, he was able to see such kind of dances that is known here as a Yakuma Natum. So Yakuma Natum is one kind of traditional belief dance. The dance should be specially performed when someone fallen ill, okay, and when someone has a mental issue. जब किसी का कोई बीमारी होता है, जब किसी का कोई दिमाग वाला कुछ इश्यू हो जाता है, तब क्या होता है, ये यकुमा डांस वहाँ पर परफॉर्म किया जाता है by chanting the God's name, but by praying the God's name to healing that particular person. So यकुमा नतम पहला उनको याद आया इस प्रकार का डांस को, फिर उनके दिमाग में कौन सा डांस याद आया, जिसको बोला जाता है देवधानी नृत्य. So Devdhani Nritta also one of such kind of traditional dance that is related with the god. So Devdhani means what? Dev means god in Assamese local language. So he related the Yakuma Natum with the Devdhani Nritya of Assam. And after that what happened? You see, would there be sufficient rainfall in the village that year? No, a puja would then have to be offered. The thumb of the right hand was adorned with number of rings. The mudra or posture centered on the thumb was especially necessary. All eyes were on that hand. The proclamation found in the Natya Shastra of India was applied in Lanka as well as like that. So the eyes fall from the hand gesture, the mind follow the eyes, feeling evolve from the mind. Rasa flows from the evolutions of the mind, then the Ija or the lead dancer was encircled by dancers who were dancing with bamboo. So now he relates such type of dance which is related to the northeastern part of India, and at the same time what kind of dances he has noticed in the Sri Lanka. Sri Lanka ने उन्होंने जिस प्रकार का ट्रेडिशनल डांस देखा था, उसको उन्होंने क्या किया, जो हमारे भारत के जो गुजरात होता है, गुजरात वालों का ट्रेडिशनल डांस होता है गरबा, ओके, और मणिपुर वन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उन लोगों का भी एक ट्रेडिशनल डांस होता है जिसको बोला जाता है रशा. So Rasha and Garba and the Sri Lanka traditional dance, and like Yakuma Natum of Northeast places traditional dance and Devdhani dance, Kshatriya dance, these are all connected and related. So he noticed that kind of dance at Sri Lanka and relate with our Indians traditional dances here. So now I am going to discuss page number 19 here. Okay, so what mention you see? So when he was in Sri Lanka में वो जब था तो क्या किया, यहाँ पे भूपेन हजारिका ने एक प्रोफेसर्स को एक क्वेश्चंस पूछा था, ठीक है. So questions यहाँ पर क्या था, you see. So I asked a professor whom I met over there, why was there a distinct lack of camaraderie between Lankans and Indians despite the obvious cultural affinities. So श्रीलंका का जो कल्चर है, इंडिया का जो कल्चर है, सो दे आर जस्ट लाइक द एफिनिटी टू ईच अदर. मतलब दोनों के बीच में क्या है,
जैसे नॉर्थ ईस्टर्न का जो ट्रेडिशनल डांस है, तो मतलब एक के साथ एक का संपर्क है, ठीक है ना, सो एक के साथ एक का कनेक्शन है। सो ऐसा लगता है कि ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न्स आर द सेवन सिस्टर्स, सो सिस्टर्स हैज ऑलवेज द सिमिलरिटीज. So exactly India and Sri Lanka, it seems just like the sisters, only a little bit differences, but maximum Sri Lanka and Indian southern parts cultures are familiar to each other. So इतना familiar होने के बावजूद भी why there is differences? Cultures are the same, Indian culture, Sri Lankan cultures are the same, but in some specific cases क्यों यहाँ पर differences है? ऐसा क्वेश्चंस भूपेन हजारिका ने रेज किया था, ओके, प्रोफेसर्स को। तो प्रोफेसर्स ने यहाँ पर उत्तर क्या दिया? सो दो आंसर दिया था। फर्स्टली द लंकन्स वर वरीड अबाउट इंडियंस economic exploitation. So Sri Lankan people especially doesn't like the economic exploitation of India, number one, as far as the professor is mentioning. And number two में क्या बोला? The Lankan's government was apprehensive of the more progressive attitude of Indian laborers. So as comparatively, the Indian laborers are more progressive than Sri Lankan. So that is also one of the issue raised by the government of Sri Lanka. So for that reasons, though India and Sri Lanka has the same cultural affinities, instead of all those, there has been lots of differences between the two countries. The kind of answers Bhupen Hazarika get from here. And finally, what happened? You see, after that incident, but Lankans and South Indians participated equally in Yakuma Natam dance and singing without any trace of animosity. Why did the two people come together in culture? Two rivers not cross, continue to unify in the sea. So भूपेन हजारिका ने यहाँ पर क्या बोला? याकुमा डांस जब श्रीलंका में भी परफॉर्म्स किया जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ मतलब कौन साउथ इंडियन, हमारे इंडियन का जो साउथ इंडियन लोग हैं, they also perform same kind of dance, and Sri Lanka also perform same kind of dance. So in dances and in culture there is no differences. और जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज मेंशनिंग वन रिवर एग्जाम्पल, जो नदी का पानी होता है, नदी के पानी के लिए कोई बाउंड्री लाइंस नहीं होता है। नदी का पानी जहाँ जाके सागर में क्या होता है? सागर में मिलने के लिए यहाँ पर कोई रुकावट नहीं है। नदी का पानी का फाइनल डेस्टिनेशन सागर ही होता है। तो इसी तरह किसी भी कल्चर में मतलब कोई प्रकार की क्या नहीं होना चाहिए? बाउंड्री लाइंस होना चाहिए, नो बॉर्डर लाइन होना चाहिए, ऑल शुड बी इक्वल. So it is the meaning of that particular line. Then there was aspects, cultures in one of them where geographic boundaries do not exist. Rivers comes continue, continent for the sea. You see, geographically there might be differences. There might be the boundaries. Matlab now India is another country, Sri Lanka is another country. Both has the boundary line. So boundary line can match different countries. But for the artist, for the natures like the water, they have no boundary, they have no limitation. One can travel anywhere to mix up with the seas. So the process of the journey, during the process of the journey of the river, nobody has become interrupted to unite that river's water with the ocean's air. In the same way, in the one of the culture, there is no differences. Anyone can unite with another one culture. So culture has no boundary, it means here. And finally, what happened? You see, so now his journey again will be start from the Sri Lanka towards the America. So one day, set sail one and a half day later than its scheduled departure. I had a problem. No one knew English. Almost all were from Indonesia. They wore long dresses like those worn by women folk. You see now finally his voyage started from Sri Lanka. अब फाइनली भूपेन हजारिका का जो वॉयस है अमेरिका तक जाने के लिए, वो 2 दिन के लिए श्रीलंका में रुका था, अपॉर्चुनिटी मिला था, अब वहां से उनका यात्रा शुरू हो गया। जैसे वो शिप में बैठ गया तो देखा कि शिप में जाने वाला, ट्रेवल करने वाला मैक्सिमम लोग उनके लिए क्या है? अननोन है। सो उसी बीच में उन्होंने नोटिस किया जो इंडोनेशिया का जो लोग होते हैं वो लोग भी उस शिप में ट्रेवल कर रहा था, और उन लोगों का ड्रेस कैसा था? जैसे महिलाएं गले से लेके पैर तक मतलब ढका हुआ कपड़े पहनते हैं, वो लोग भी उसी प्रकार के कपड़े डिजाइन करके पहने हुए थे। उन्होंने ऐसा नोटिस किया। देन looking at them, I had the feeling that we were in Manipur or in
or in an Ahom village of Assam. So by observing such kind of Indonesian peoples and their dress code, finally Bhupen Hazarika returned back to his own motherland. Okay, वो असम के बारे में फिर वो सोचने लगे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के बारे में सोचने लगी कि मणिपुर की औरतें किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, असम की औरतें किस प्रकार कपड़े पहनते हैं। तो इंडोनेशिया के कपड़े को देख के उन्होंने फिर अपने देश के साथ यहाँ पर रिलेट किया। सो बार बार वो हर इंसिडेंट्स को अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपनी कंट्री के साथ, अपनी स्टेट के साथ वो रिलेट कर रहा है, यहाँ की कल्चर, वहाँ की कल्चर। इसका मतलब क्या है, हालांकि वो अमेरिका में जा रहा है, बार बार जो यादें है, जो मेमोरीज है, ओके, उसका जो अटैचमेंट है वो बार बार यहाँ पर निकल के आ ही रहा है, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी प्रकार से। So one or two persons with knowledge of English were eventually found. तो शिप के अंदर उन्होंने एक दो पर्सन्स मिला जिसको इंग्लिश पता था, हाँ, जिसके साथ वो बात कर सकते थे। I was a bit scared too. I had left everyone behind. The pot ahead was full of uncertainties. In the meanwhile, I met a French young man of 23 or 24 who would speak English fluently. Now you should remember this point that उनको शिप में कौन मिला था, एक फ्रेंचमैन मिला था, ओके, वो उस फ्रेंचमैन को इंग्लिश पता था। तो उस फ्रेंचमैन के साथ उन्होंने बात करना शुरू किया भूपेन हजरिका ने। उनका उम्र कितना होगा, आइदर 23 और 24 होगा। When I asked him his name, he replied with a smile, I am one of millionaire of Andres. You see how sarcastically, how interestingly he introduced himself with the Bhupen Hazarika. भूपेन हजरिका ने उनका नाम जो पूछा, आपका नाम क्या है, तो उन्होंने किस प्रकार का आंसर दिया, यहाँ देखो। So I am one of the millions of Andres. So lots of Andres names are available throughout the whole universe. So among all those people, I am also one of them. So like that, he has given the answer of his own name. So he was 23 or 24 at that time. He had joined the French army at the age of 17 and was going home after a long period. So वो फ्रेंचमैन कहाँ काम करते थे, वो फ्रेंच आर्मी में काम करते थे। So as a soldier he used to work. और एज ए सोल्जर वो फ्रेंच आर्मी में कब ज्वाइन किया था, जब उसका उम्र 17 इयर्स था। तो 17 इयर्स में ही उन्होंने क्या किया, अपने देश की रक्षा के लिए, देश के लिए काम करना शुरू किया। और बहुत दिन बाद अपनी ड्यूटी में रह के वो फाइनली अपने घर वापस जा रहा था, एक सेम शिप की द्वारा, जिस शिप पे भूपेन हजरिका भी जा रहे थे अमेरिका के लिए। आई वॉच द इंडियन ओशन थ्रू द केबिन विंडो। I watched the Indian Ocean through the cabin window. At times, I went on the deck and tried to exchange a few words with other boundaries of the ship. So उन्होंने देखा शिप की कैबिन से, शिप में बैठा हुआ था, कैबिन से, विंडो से वो बाहर का नज़ारा देख रहा था। फिर वो शिप के अंदर जाके क्या करना चाहते थे, किसी के साथ कुछ वर्ड्स मतलब एक्सचेंज करना चाहते थे, बात करना चाहते, कोशिश किया वहाँ पे। In a few days, the ship reached the port of Aden. So finally, शिप कहाँ पर पहुंच गया, पोर्ट ऑफ एडन में पहुंच गया। आई गो डाउन इन दैट पोर्ट एंड ब्रॉट ए रोलीफ्लेक्स कैमरा। ओके, रोलीफ्लेक्स कैमरा उन्होंने कहाँ पर खरीदा, पोर्ट ऑफ एडन में। जैसे पोर्ट ऑफ एडन में जाके शिप वहाँ पर ठहरा, शिप ने थोड़ा टाइम के लिए विश्राम लिया, तो भूपेन हजरिका को अपॉर्चुनिटी मिलते ही वो एक शॉप में गया और एक कैमरा खरीदा। तो कैमरा कहाँ खरीदा, व्हाट इज द ब्रांड ऑफ द कैमरा, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, सो यू शुड रिमेंबर। सो रोलीफ्लेक्स कैमरा ही वाज बॉट। तो फिर क्या किया, द शिप्स डिपार्चर वाज अनाउंस्ड एंड आफ्टर अ हॉल्ट ऑफ अलेक्जेंड्रिया द शिप वाज शेड्यूल्ड फॉर अ वाटर स्टॉप एट Djibouti, Italian Somaliland. So finally it reached Italy. इटाली का कौन सा जगह पे पहुंचा, Djibouti, Italian Somaliland, उस जगह में वो पहुंच गया। Taking advantage of few hours stoppage, I went to have a look at the city of Djibouti. So जैसे ही उस Djibouti में जाके शिप कुछ टाइम के लिए रुका, तो भूपेन हजरिका को अपॉर्चुनिटी मिलते ही उस जगह को देखने के लिए वो वहां से निकल गया। ओके, So I observed that the imperialist Italians had not brought any development to the place. जब उसको चांस मिला इटाली शहर को देखने के लिए, वो शिप की लैंडिंग प्लेस से वो दूर जाके जब उन्होंने नोटिस किया, तो देखा कि इटाली जो कंट्री है अभी भी अंडर डेवलप है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उन्होंने ऐसा नोटिस किया। तो किस लिए उन्होंने अनडेवलप बोला, देखो, द होल प्लेस वाज लिटरेट विथ वाइन शॉप।
द होल प्लेस वाज लिटर्ड विद वाइन शॉप। तो इटाली का जो मार्केट एरिया है, मैक्सिमम उस मार्केट एरिया में किसका दुकान पाया गया? वाइन का, शराब का दुकान मिला गया। और जहां पर ज्यादा शराब पीते हैं तो वहां पर लोग क्या होते हैं, शराब पी के नशे में रहता है तो ज्यादातर काम भी नहीं कर पाता है, और जहां ज्यादा काम नहीं होता है वो हमेशा अनडेवलप ही रहता है। तो इटाली कंट्री का हालत भी कुछ इस प्रकार था जब भूपेन हजारिका ने नोटिस किया। एंड मोस्ट पीपल सीम्ड, मैक्सिमम पीपल को उन्होंने क्या नोटिस किया? मोस्ट पीपल सीम पोर, women who roamed the street were in burqa. I show no sign of life at all. तो लोगों को देखा कि मैक्सिमम पीपल वहाँ गरीब है, महिलाएं बुर्खा पहन के वहाँ घूमते हैं, तो महिलाएं बुर्खा में, लोग गरीबी, इधर शराब का दुकान। तो अल्टीमेटली भूपेन हजारिका को क्या ये एहसास हुआ, क्या ये भी कोई जिंदगी है, क्या जिंदगी ऐसे होते हैं, ऐसा वाला सोच आया। तो इससे तो अच्छा है हमारा इंडिया, है ना। He felt like that. The next stop was Cairo. Finally वो कायरो में पहुंच गया, ठीक है। इटाली से निकल के, इटाली का जो डिजिबाउटी है वहां से निकल के कायरो पहुंच गया। That city was similar to Bombay. So that Cairo was exactly like the Bombay. So Bombay is one of the important city, capital city of our country, isn't it? So it is a city of dream. It seems it's said like that. It is a city of rich people. Okay. तो कायरो पहुंचते ही भूपेन हजारिका ने उस कायरो सिटी को बॉम्बे के साथ कंपेयर किया। पीपल वर शाउटिंग एवरीवेयर एंड स्पीटिंग ऑल ओवर द प्लेस। तो मुंबई के साथ, बॉम्बे जो अब मुंबई है उनके साथ रिलेट करने का एक इशू, एक रीजंस भी था भूपेन हजारिका के पास कि कायरो किस लिए सेकंड बॉम्बे ऑफ इंडिया। व्हाई यू सी, क्योंकि उन्होंने वहां क्या नोटिस किया, वहां पर लोगों का भीड़ है, भीड़ इकट्ठा है, एक दूसरे से जोर जोर से बात कर रहा है, लोग यहाँ थूक रहा है, लोग वहां थूक रहा है, पान खा के, गुटखा खा के यहाँ वहां थूक रहा है। सो ऐसा वाला नजारा उनको वहां पर दिखाई दिया। So there was no much similarity with us that I had a feeling of being in my own country. Finally, though he was in the Cairo, वो कायरो सिटी में है, फिर भी भूपेन हजारिका को 0% भी नहीं लगा कि वो एक फॉरेन लैंड में है। वहां जाके उन्होंने जिस प्रकार का एनवायरनमेंट देखा, इट्स एग्जैक्टली सीम्स लाइक आवर कंट्री इंडिया। सो देन व्हाट इज द डिफरेंस? That's why he doesn't feel any kind of animosity, any kind of feeling of fearness. It seems just like the familiar places, as he knows since the long days. It feel like that for the Bhupen Hazarika here. So फिर क्या हुआ? Constraints of time mean that I could not visit the pyramids or go and the Cleopatra's hair clip. It was there that we heard the news that Mao Zedong's long march had succeeded, which meant that China had become free. So when he was in Cairo, तब उनको ये सुनाई दिया कि फाइनली, मतलब उस टाइम में युद्ध चल रहा था, तो चाइना उस युद्ध में क्या हो गया? फ्री हो गया। They became the winner. China had become free. The news made me think that my long march would also reach its conclusion one day. After the discovery of New World, I had no idea when that day would arrive. My only aim was to keep going. सोराय भाटी, उन्होंने ऐसा बोला। तो जब वहाँ पर कायरो में था तो वो पिरामिड्स देखना चाहते थे, पर could not visit due to lacking of the time की वजह से वो देख नहीं पाया। लेकिन उसी टाइम पे उन्होंने सुना, एक न्यूज़ सुना, चाइना का युद्ध हो रहा था, तो उस युद्ध में क्या हुआ? चाइना जीत गई, चाइना फ्री हो गया, बॉन्डेज ऑफ अदर कंट्री। चाइना इज नाउ बिकम लिबरेट कंट्री, ऐसे उनको सुनाई दिया, चाइना को इंडिपेंडेंस मिल गया। तो उस टाइम पे भूपेन हजारिका ने खुद को रिलेट किया, मेरा भी जर्नी चल रहा है, मैं कब अमेरिका में पहुंचूंगी, कब मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करूंगी, कब पढ़ाई खत्म करके मैं वापस असम आऊंगी, इंडिया आऊंगी, ये सोच उसको बार बार सता रहा था। तो अपने आप को यहाँ पर वो समझा रहा है, जैसे चाइना ने लॉन्ग स्ट्रगल करके आज अपने आप को फ्री किया है, ठीक है, तो गुलामी से जैसे फ्री किया है, इंडिपेंडेंट एक कंट्री बना है, ठीक उसी तरह मेरा भी ये जो जर्नी चल रहा है, एक दिन जाके मुझे डेस्टिनेशन मिलेगा और मैं भी अपने आप को आजाद कर पाऊंगा। भूपेन हजारिका ने ऐसा सोचा। सो amidst all this, I was witness to an incredible incident. So इतना सब कुछ तो वो देख ही रहा है, हो ही रहा है उनके साथ। जब से उन्होंने यात्रा शुरू किया तो मतलब अचानक से उसको ऐसा एक घटना दिखाई दिया, which is here mentioned as incredible, मतलब मुंह से बयान नहीं कर सकते हैं, valuable, we cannot express through the mouth. Okay, that kind of incident he noticed.
क्या देखा देखो, ऑन द वे फ्रॉम एदेन टू डिजिबाउटी बिफोर वी हैड रीच द रेड सी में पहुंचने से पहले उन लोगों को एदेन और डिजिबाउटी क्रॉस करना था, जो वी हैव ऑलरेडी मेंशन अबाउट दैट। तो फाइनली क्या हुआ, एट 2 o'clock इन द नाइट द शिप्स अलार्म बेल स्टार्टेड रिंगिंग। सो रेड सी में लाल कहाँ पर, सागर में पहुंचने से पहले अचानक से 2 बजे एक अलार्म बज उठा शिप पे बाहर जहाज पे। तो क्या हुआ, वॉकिंग अप आई फाउंड दैट द शिप वाज स्टेशनरी, एवरीवन वाज गैदर्ड ऑन द डेक। तो जैसे ही 2 बजे जगा तो देखा कि शिप कहाँ जाके रुका, दुकान के सामने। मतलब यहाँ पे जिसको जो सामान चाहिए खरीद सकता है, क्योंकि और आगे जर्नी जाना है, जिसका जो जरूरत है मार्केट से दुकान से सामान खरीद लो, इस टाइप का अलार्म था वो। तो स्टेशनरी में रुका होता, एवरीवन वाज गैदर्ड ऑन द डेक। The captain was saying that from that exact spot once in a long while the star above the holy crescent moon of Muslim could be seen. You see at the time the Muslim has a Muslim लोगों का क्या होता है, साल में एक रमजान होता है। सो रमजान महीना में वो लोग चांद को देखते हैं, और चांद का एंड जब होता है तब उन लोगों का वो रमजान खत्म होता है, फास्टिंग। तो यहाँ पर क्या हुआ, रात के बीचों बीच में 2 बजे में कैप्टन ने ये भी इन्फॉर्म किया कि आप लोग यहाँ से चांद का नज़ारा देख सकते हो। यू कैन सी द मून, लाइक दैट इंफॉर्मेशन ही हैज गिवन टू ऑल द मुस्लिम्स पीपल देयर हु आर ट्रेवलिंग ऑन दैट पर्टिकुलर शिप। I watched this rare object in great away, so noticing almost everyone clicking photograph of that sight, I also took a new snap with my new रोलीफ्लेक्स कैमरा। सबने चांद को जैसे देखा नज़दीक से, सागर से चांद नज़दीक लग रहा था, तो सभी ने चांद का फोटोग्राफ निकालना शुरू किया। और साथ में भूपेन हजरिका ने जो कैमरा खरीदा था एडेन में, जो रोलीफ्लेक्स जो कैमरा है, उनके साथ उन्होंने भी एक फोटोग्राफ लिया चांद का शिप से। So then the captain said that although they had traversed the route innumerable times, they had the great fortune of beholding that sight only once or twice. हालांकि कैप्टन ने क्या बताया, हालांकि मेरा काम है शिप को चलाना, लोगों को यहाँ से वहाँ भेजना, मैं मैक्सिमम टाइम इसी लेन से जाती हूँ, रेड सी से, फिर भी हर टाइम मुझे ये इस टाइप का नज़ारा नहीं देता है। ओके, जो चांद उस दिन निकला हुआ था, ऐसा वाला नज़ारा बहुत रेयर होता है। सो लकी पर्सन्स कैन ओनली एबल टू सी फ्रॉम द क्लोजनेस। ओके, so there was not it seemed doesn't much distance between sea and the moon at the time, so that's why it is a real picture. कैप्टन ने इस प्रकार का इंफॉर्मेशन पास किया सभी के लिए। So after that, overwhelmed with joy, I prayed to the God of the wave, prayed for myself and for all I knew. I heard a voice deep inside me that said, let this divine sight stand as a blessing in your life of a traveler. May you keep going from country to beyond country, from nations to beyond nations. Let the fatigue of the journey become a joy inside you. तो भूपेन हजरिका ने क्या किया, चांद को देख के उन्होंने सबके लिए प्रे किया। ठीक है, उनका रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स, उनके साथ जो कनेक्ट है, सबके लिए प्रे किया। और प्रे करने के बाद उनके अंतरात्मा से एक आवाज आ रहा था। वो आवाज क्या है, उसको ऐसा लगा कि उनका जो जान पहचान है, जिनके लिए वो आज प्रे कर रही है, सभी के लिए सब खुश रहे, सब अच्छे हेल्थ में रहे, ठीक है, सबकी ज़िंदगी में प्रोग्रेस हो। तो वही वाला ब्लेसिंग्स, मतलब उनकी फैमिली मेंबर्स से, उनके रिलेटिव से, उनके फ्रेंड सर्कल से उनके लिए भी आ रहा है, दुआ आ रहा है, ऐसा भूपेन हजरिका को फील हुआ। ठीक है, सो उनको ये फील हुआ कि जर्नी बिकेम ए जॉय इनसाइड यू। जिस जर्नी के लिए वो निकला है, वो जर्नी उनके लिए सक्सेस हो और वो अपने गोल में रीच करे, ऐसा और ब्लेसिंग्स भी मुझे मिल रहा है, हजरिका को ऐसा फील हुआ। The journey resumed. I heard that not even many Muslims have the fortune of witnessing this rare sight. तो जर्नी फिर से शिफ्ट शुरू हुआ, यात्रा शुरू किया, वॉयज शुरू हो गया। तो भूपेन हजरिका को ये लगा कि इवन मुस्लिम्स पीपल ऑल्सो नॉट गेट दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो बोलता है ना ईद का चांद। ओके, सो दैट वाज सीम्स लाइक द ईद का चांस। सो ईद का जो चांद होता है, 1 month फास्टिंग करने के बाद पहले बाहर चांद देखने का जो खुशी, जो आनंद, तो इट सीम्स जस्ट लाइक द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द गॉड। ये वाला एहसास मतलब कुछ मुस्लिम्स को भी नहीं मिला जो आज मुझे मिला, ऐसा भूपेन हजरिका को लगा वहाँ पे।
So after that what happened? But I did not belong to any particular caste or community. भूपेन हजारिका ने बोला कि मैं ना कास्ट विश्वास करती हूँ ना मैं कम्युनिटी विश्वास करता हूँ। जो मुस्लिम्स के लिए यहाँ जो मेंशन किया है इस बात को लेकर उन्होंने बोला बिकॉज ही वॉज ए लिबरल मैन एंड ही बिलीव इन ह्यूमैनिटी इसे। तो मैं ना कोई जाति का भेदाभेद तो मैं हालांकि विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन आज जो मैंने देखा आई फील लाइक दैट मतलब आई एम वन ऑफ द blessed child of God. He felt here like that. So my only identity is that of a human being. उसका अस्तित्व क्या है? वो एक इंसान है। तो इंसानियत का कोई जाति नहीं होता है, इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता है, इंसानियत में हर कोई एक ही होता है, हर कोई भाईचारा होता है। ये सोच है भूपेन हजारिका का। Maybe that was why God showered His kindness on me to that way. इसीलिए हमको लगता है क्योंकि मैं हमेशा ह्यूमैनिटी को प्रिफर करता हूँ, मेरे अंदर मानवता को मैं धर्म मानता हूँ, शायद इसलिए भगवान ने मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी दिया जो रियल जो पिक्चर जो चांद का होता है उस देखने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। सो अनदर सरप्राइज वाज लेइंग ऑन इन वेट कास्टिंग माई आईज अराउंड आई सो 1000 नियॉन लाइट्स इन द सी। और उन्होंने क्या देखा? दूर दूर से बहुत सारा नियॉन लाइट्स दिखाई दिया भूपेन हजारिका को सागर के बीच में। हाउ कुड देयर बी लाइट इन द सी? भूपेन हजारिका के दिमाग में क्वेश्चन आया, सागर के बीच बीच में इतना सारा नियॉन लाइट कहाँ से आया? उसको दूर से दिखाई दे रहा था, तो अपने आप से वो क्वेश्चन कर रहा है। ऑन इंक्वायरिंग, पूछने के बाद उनको क्या मिला? आई वाज टोल्ड दैट देयर वर अ हर्ड ऑफ phosphorus fish which were lighting up the sea with such a dazzling display. So finally, भूपेन हजारिका क्या हो गया? He is almost nearest to reach his destination. Okay. तो इस प्रकार क्या हुआ? भूपेन हजारिका का वॉयस स्टार्ट होते वो फाइनली कहाँ पहुँच गया? अमेरिका के और नज़दीक को पहुँच गया। So in this way the chapter is ended here. So from the beginning to the till end, so Bhupen Hazarika started his journey towards the America for completing his higher educations. So during his journey, he has faced so many ups and downs, so many happiness and sorrows mood, and he met different kinds of people. So like that, whenever as he passed ahead, every time he has shocked and surprised as well as. So sometimes he feel unfamiliar with the places and sometimes he feel familiar with the places which he has crossed during his journey to the America. So whatever it might be, finally he reached America. So in this way the chapter is finished. So thank you very much for today's session. I hope you understand. So in next my class I will continue with new one chapter that is either with the prose or poetry. So it might be I shall start with the martyr corner. Okay. Thank you very much. Bye-bye.